السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقال الله تبارك وتعالى: ربي هب لي من الصالحين. فقال الله تبارك وتعالى: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من أدب حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر و واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی جمعہ میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. یہ سن ہجری 1443 اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر، آج اس کی 2 تاریخ ہے. جمعرات کو پہلی تاریخ تھی، آج دوسری تاریخ ہے. اسلام میں اس مہینے کو سفر المظفر سے یاد کرتے ہیں. اگلی جمعہ کا باقی ماندہ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یعنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دوسرا پارٹ یا آج کی تقریر کا عنوان ہے. اگلی جمعہ میں ذکر کیا تھا ہر انسان اولاد سے محبت کرتا ہے اور ہر انسان کی شادی کے بعد چاہت ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد عطا فرمائے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر شریف کے 86ویں برس میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا تھا. حضرت زکریا نے اپنی عمر کے 110 سال برس میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تھی. اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا فرمایا تھا. ابراہیم کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا تھا اور دوسرے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کے گرد 12 بیٹے ہوئے تھے. تو انسان شادی کے بعد ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اولاد عطا فرمائے.
اور اولاد کے لیے انسان دعا کرتا ہے. اولاد کا دیا جانا یہ اللہ کے فیصلے سے ہے. وہ جسے چاہے لڑکے عطا فرمائے، وہ جسے چاہے لڑکیاں عطا فرمائے، وہ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، اور وہ نہ دینے پر آئے تو زندگی پر بانجھ رکھ کر کوئی اولاد نہ دے. اولاد کی تربیت کے بابت کل 7 مراحل ہیں، 7 مرحلے آتے ہیں، جس میں مرحلہ وار انسان اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے، جس میں سے 3 مراحل ذکر کر دیے. پہلا مرحلہ اولاد کی بننے والی ماں، یعنی شادی میں جس لڑکی کا انتخاب کرے وہ لڑکی اچھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم. اے جوانوں، تم شادی کرو گے تو 2 صفات کی مالک لڑکی سے نکاح کرو. ایک جو شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہو، دوسرے نمبر میں جو بہت بچے جننے والی ہو. الودود الولود، ودود جو بہت محبت کرتی ہو، ایسی لڑکی سے نکاح کرو. جو بہت بچہ پیدا کرے، ایسی لڑکی سے نکاح کرو. اسلام اور سوشلزم کے قانون میں بہت بڑا فرق. کمیونسٹ اور کمیونزم میں بے بال کو بس ہے، اور اسلام میں وہ لڑکی پسند کی جاتی ہے جو بہت بچہ جنے. البتہ یہ دونوں باتیں کیسے معلوم ہو کہ آنے والی لڑکی اس لڑکے سے بہت محبت کرے گی؟ کہاں اس کی بہن کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو، اس لڑکی کی نانی کو دیکھو، پتہ چل جائے گا. اس کا خاندان دیکھ کر کے نکاح کرو. یہ خاندان دیکھا جاتا ہے. بہت بچہ جننے والی اس کی بہنیں دیکھو، اس کی خالائیں دیکھو، اس کی نانی دیکھو. وہ کثرت اولاد کی مالک ہے، اللہ اس کو بھی کثرت اولاد کی مالکہ بنائے گا. تو نکاح میں سب سے پہلے دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگلی جمعہ میں نے مفصل بات کی تھی. ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت پیش کی تھی. پھر بیٹے نے باپ کے بابت چند باتیں فاروق اعظم سے پوچھی تھی. تو اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا باپ کا حق ہے بیٹے پر، سب سے پہلے اس کی اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا اسلامی نام رکھے اور اس کو دین سکھائے. شادی میں مرد اور عورت کا جوڑا ہوتا ہے، میاں اور بیوی. اگلی جمعہ کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے، لڑکی پابند شرع ہونی چاہیے، لڑکی اچھے خاندان کی ہونی چاہیے. تو کیا صرف لڑکی دیندار ہو، لڑکا آوارہ ہو تو چلے گا؟ اگلی جمعہ میں نے کہا کہ حقوق جانبین سے ہیں. اب دیکھو، لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے، لڑکی بھی دیندار ہونی چاہیے. جیسے اپنے لیے اولاد کی ماں دیندار منتخب کرے گا، خود بھی دیندار ہوگا. اس لیے کہ لڑکی کی حیثیت کھیتی کی ہے اور لڑکے کی حیثیت کھیڑو کی ہے. بیوی کی حیثیت کھیت کی ہے اور شوہر کی حیثیت کھیڑو یعنی کسان کی ہے. کیا مطلب؟ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. میں نے ابھی کہا آپ چوک گئے. عورت کو کھیت کہا اور مرد کو کھیڑو کہا. قرآن کہتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں
तुम्हारी खेती है, और खेती आदमी खेत में करता है। अभी मांडवी का खेतर तैयार है माशाअल्लाह, एक आध डेढ़ महीने के बाद कटाई शुरू होगी। खेत हल चलाकर, बेला समार चलाकर, चास करके, कड़िया चलाकर, खातर डालकर, बारिश के आने से पहले खेत को हमवार करना पड़ता है। इसी तरह औरत दीनदार पसंद करके दीनी माहौल की बेटी लाकर, जैसे काश्तकार ने खेत हमवार किया था और इसमें खातर डालकर, चास डाल करके बारिश का इंतजार था, जैसे आसमान के कतरात से बारिश बहेगी आसमान से और बारिश उतरेगी, ये खेत में दाखिल होगी। अब आदम का बच्चा इसमें खेती करेगा, ये खेती कितनी अच्छी शानदार होगी। इस खेती को पैदाइश से पहले और इस खेत को खेती वाला बनाने से पहले खेत को हमवार किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है और उसमें काश्तकार खेती करता है। इसी तरह औरत को भी शादी से पहले ये दीनदार है कि नहीं, अगर उसका दीन कंप्लीट है तो कंप्लीट खेत, इसमें दाना बोने के बाद जैसे खेती उग जाती है, आसमान के जर्रात, जमीन के जर्रात, खाद की गंदगियां, आफताब की शुआएं, महताब की किरणें और जमीन की भूचार इसको दबा करके अंदर से कुंपल निकालती है और मनों के हिसाब से डाला हुआ गन्ना टनों के हिसाब में तब्दील हो जाता है। औरत की हैसियत खेत की है। अब खेती करने वाला मर्द, इसकी हैसियत बयान की, वो औलाद की अच्छे से अच्छी तरबियत करेगा और तरबियत औलाद की शुरू होगी दूसरे मरहले में औरत के साथ सोहबत के जरिए से, जिसमें दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना। इसलिए कि कुरान कहता है वशारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद, शैतान इंसान का शरीक बनता है उसकी बीवी के साथ सोहबत करते वक्त और अपने माल के अंदर भी शैतान शरीक होता है, तो शैतान की शिरकत को खत्म कर दिया। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना के जरिए से। किसान क्या करेगा? अपने खेत में बोई हुई खेती कांटे निकालेगा, घास निकाल देगा, इस जमीन को नर्म मुलायम रखने के लिए पानी पिलाएगा, अच्छे से अच्छी पैदावार के लिए खेत की निगरानी करेगा और दवाई इलाज जो कुछ है उसकी कोशिश करेगा। हमल में जब इस सोहबत के जरिए से हमल ठहर गया तो अब पेट के जमाने के अंदर हर मुश्तबल और हर हराम खुराक से बीवी की भी हिफाजत करेगा और बच्चे की भी हिफाजत करेगा। अब बच्चा 4 महीने पहले जान पड़ने से पहले अगर किसी खोट खराबी खामी या बच्चा और मां पर जान का अंदेशा हो तो उसको खत्म किया जाने की गुंजाइश, लेकिन जब बच्चे में जान पड़ चुकी है 4 महीने के बाद डॉक्टर कहेंगे हमल में ये खामी है, जान का खतरा मां का है, बच्चा खाद खोपण वाला है, ये सब गलत है। साइंसी तहकीकात का अब कोई एतबार नहीं, अब इस्लाम का एतबार किया जाएगा। जैसा कि तेरे मुकद्दर में बेगड़ा हो, तेरे मुकद्दर में गूंगा हो, तेरे मुकद्दर में पागल हो, अल्लाह के फैसले से है। अब उसमें जान पड़ चुकी, लिहाजा उसकी मां के पेट के अंदर अब उसको क्रिएटन करके बर्बाद करना हराम है। तरबियत करेगा मां के पेट में। बाप क्या करेगा? कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं करेगा, कोई नाशाइस्ता कलीमे बनेगा नहीं, इसलिए कि वो टेप रिकॉर्ड है।
और 4 महीने के बाद जान पड़ गई, अंदर उतर रहा है। इसीलिए हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांडलवी मज़ाहिर-ए-उलूम सहारनपुर के माए नाज अकाबिरीन मुहद्दिसीन में से, जिन्होंने 50 साल तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई, हजरत से मेरी रूबरू मुलाकात भी है। उन्होंने मलफूजात में लिखा है कि सहारनपुर में एक शरीफ घराना था, दीनदार मर्द और औरत। उसने अपनी बीवी का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा था, और अल्लाह ने उसके यहां औलाद अता फरमाई तो हमल के जमाने में बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। दोनों मियां बीवी, बच्चा पैदा हुआ। एक मर्तबा बाप की उंगली पकड़कर चल करके बाजार में गए तो बोर बेचते थे, तो बोर के ढेर पर से बच्चे ने बोर उठा करके बोर के मालिक से चुपके से उसने खा लिया। बाप बहुत परेशान हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, और एक दिल में फिक्र सवार हुई कि आखिर जब उसकी मां के पेट में लुत्फा करार पाया था, 9 महीने तक मैंने कोई मुश्तबे खुराक नहीं खाया और कोई नाजेबा और नाशाइस्ता हरकत मेरी बीवी के हमल के जमाने में हम दोनों ने नहीं की, न कोई गाली बोली, न कोई गलत हरकत की। मैंने कमाई में भी पाकी का इत्तिमाम किया। आखिर लड़के ने बोर चोरी करके खा क्यों लिए? छोटा लड़का था और ललचाता है बोर देखकर, खा लिया। हम और आप कहते हैं वड़ी इसमें क्या हो गया, एक बोर था, लेकिन वो नेक आदमी था, बड़ा मुतफक्किर, बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान घर में आया। बीवी ने शौहर को देखकर कहा, खैरियत तो है? कहा, खैरियत का क्या पूछते हो? आज इस बच्चे ने ये हरकत की कि बाजार से बोर बेचने वाले से बोर बगैर इजाजत के लेकर खा गया। आखिर जब से तेरे पेट में मेरा लुत्फा करार पाया था, हमल के जमाने में भी कोई सुबह वाला लुकमा तुझे नहीं खिलाया, कोई गलत हरकत हमने नहीं की। आखिर बच्चे ने बचपन में चोरी क्यों की? दोनों मजबूर हुए सोचने पर। बीवी ने कहा, एक बात है, हमारा जो घर है बाजू के घर में बोरडी का झाड़ है, और बोरडी की सीजन में उसकी एक डाली वो हमारे घर की सहन के अंदर है, और जब बोरडी में बोर आए तो एक डाली हमारे डेले में पड़ती है, तो उसका एक बोर पक गया था, वो गिर गया था। उसकी इजाजत के बगैर जब ये बच्चा मेरे पेट में हमल में था तब मैंने खा लिया था। तो इस बुजुर्ग ने फरमाया, बस तूने अपने पड़ोस के वो बोर की डाली जो हमारी डेली में पड़ती थी, उसका असर ये हुआ कि बच्चा पैदा होने के बाद बाप की उंगली पकड़कर चलने वाला हुआ, तो उसने भी बगैर इजाजत के चोरी से बोर खाया। क्या मतलब? हमल के जमाने में मां को औलाद की तरबियत की फिक्र करनी पड़ेगी। अगर हमल के जमाने में मां ने इन बातों का ख्याल नहीं रखा बाप ने, तो बड़े होने के बाद इनसे खैर की तवक्को नहीं हो सकती। तीसरा मरहला भी मैंने जिक्र किया था। 7वें दिन इसका इस्लामी नाम रखे, इसके बाल उतार करके उसके वजन के बराबर चांदी या सोना सच्चा करे और अच्छा इस्लामी नाम रखे, जो इस्लामी नाम है। अब वो कौन? नाम रखने की तरतीब क्या है? नबियों के नाम रखे, सहाबा के नाम रखे, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा इज़ाम के नाम रखे, सहाबियात के नाम रखे, अंबिया की बीवियों के नाम रखे। नाम का असर पड़ता है। यहां तक की बातें तो मैं तफसील से जिक्र कर चुका। इसका खतना करे, अकीका करे, अकीका 7वें दिन कर ले या 14वें दिन कर ले या 21वें दिन कर ले,
बचपन में बच्चा कुछ बीमारियां उम्मुस्सिबियान, जिन्नात और शैतानी असरात का शिकार हो जाता है। बच्चा है शैतानी असरात का शिकार हो जाता है। उम्मुस्सिबियान का माना शैतानी असरात का बच्चा शिकार होता है, तो शैतानी असरात से बच्चे की हिफाजत हो जाएगी। बचपन में कर डाले। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन का अकीका किया था बचपन में, और एक बकरा हसन हुसैन के मौके पर और एक बकरी हसन के मौके पर सदका की थी, यानी अकीका की थी। अकीका उसको कहते हैं। अकीका में आदमी की हैसियत के मुताबिक जानवर जो कुर्बानी में चलता है वही अकीका में चलता है। चाहे उसका कच्चा गोश्त रिश्तेदारों को तकसीम कर दो, चाहे खाना खिला करके रिश्तेदारों को खिला दो, अकीका कर दो। ज़माना जाहिलियत में लोग जानवर ज़बा करते थे और जानवर के खून से बच्चे को लीप लेते थे। इस्लाम आया और इस्लाम में फरमाया अकीका करो, खून नापाक है, वो बच्चे के जिस्म पर मला और सर में लीपा नहीं जाएगा, उसकी जगह पर जाफरान उसके सर के अंदर लिप दो। बच्चे में जब तक तहम्मुल पैदा हो जाए तो खतना करा दो। इस उम्र पर पहुंच गया जिसमें तहम्मुल हो गया बच्चे को, चाहे 7वें दिन, चाहे महीने में, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, इसका खतना करा दो। खतना शाइर इस्लाम में से है, खतना सुन्नत है। खतने की इजाज़त खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, तो खतना करा दिया जाए, ये शाइर इस्लाम में से है, ये इंसान की मुसलमानी है और ये सुन्नत में से है। खतने के अंदर कोई दीगर लवाजिमात नहीं है, न कोई दावतें हैं, न कोई बेजा रसूमात हैं, न वार्ता करने वाले को बुलाना है, बस बेहतर तरीके से उसका खतना किया जाए। 4 बातें। 5वीं बात, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, उसके लिए आसमान में से रोजी उतारी। वफिस समाइ रिज़्कुकुम वमा तुअदुन, अल्लाह ने जमीन के अंदर से रोजी उतारी। तरह तरह के फल फ्रूट गिजाए, हर किस्म के दाने, गेहूं जवार बाजरी मकाई, फ्रूट ड्राई फ्रूट, हजारों लाखों करोड़ों किस्म की खाने की हलाल और तय्यब चीजें इंसानी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए हलाल और तय्यब खुराक। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहात, ऐ रसूलों की जमात पाकीज़ा खुराक खाओ और नेक काम करो। हलाल तय्यब खाना खाया जाएगा, हराम खाने से बचा जाएगा। न घर में कोई मर्द औरत खावे, न बच्चों को हराम खिलावे, सुबह वाली चीज भी न खिलावे। तो अल्लाह ताला ने इस जिस्मी इंसानी की बहाल रखने के लिए और इंसानी जिस्म में कुव्वत के पैदा करने के लिए जमीन भर से आसमान से रोजियों का इंतजाम किया। एक उसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती को बहाल रखने के लिए और एक उसकी जिस्मानी सेहत के लिए अल्लाह ने करोड़ों रोजी की चीजें उतारी। लेकिन बच्चा जब बच्चा हो, 2 साल से कम के उम्र का हो, उसकी मां ही का दूध उसको पिलावे, पाउडर के डिब्बे का दूध न पिलावे, बकरी का दूध न पिलावे, गाय का दूध न पिलावे। तमाम अतिब्बा का कदीम और जदीद साइंस भी यही कहती है कि बच्चे के लिए मां के दूध से उम्दा पौष्टिक और उम्दा खुराक कोई नहीं। अगर औरत में दूध नहीं है तो दूध के असबाब पैदा किए जाएं, वो जानवर का दूध पीवे और वो भी पतला करके जो तीब में लिखा है, और वो मुकव्वी गिजाएं खाएं जिन गिजाओं के जरिए से मां में दूध पैदा हो, और जब मां में दूध पैदा हो तो वो बच्चे को भी दूध पिलाए। ये तो रूहानी जिस्मानी गिजा है। ठीक इसी तरह इंसान को रूहानी गिजाओं की भी जरूरत है। ये तो हर एक जानता है
کہ معصوم بچہ ماں کے دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ انسان غذا کے بغیر زندہ نہیں رہتا. یہ تو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ کھانا پینا یہ لوازمات بشریت میں سے ہے. جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں. البتہ مسلمان ایک آنتڑی میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتڑیوں میں کھاتا ہے. یعنی 7 کافر مل کر کے جو کھانا کھاتے ہیں، ایک مسلمان کا ایک کا کھانا یہ ایک کے لیے ہے، اور 7 مسلمان کا کھانا ایک کافر کے لیے کافی ہوتا ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ کافی لسبع. کیونکہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، نعمت کے شکریہ میں کھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا روزی سمجھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتا ہے، کھا کر الحمدللہ پڑھتا ہے. یہ نعمت کا شکرانہ ہے. تو غذا کی ضرورت ہے جسمانی، ایسے ہی روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں روحانی غذاؤں کے لیے انبیاء اتارے، روحانی غذا کے لیے تورات، زبور، انجیل، انبیاء کے 100 صحیفے اتارے، روحانی غذا کے لیے قرآن اتارا. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم نے اس بیٹے سے کہا، باپ کا حق ہے اولاد پر کہ اچھی لڑکی دیندار مسلمان کا انتخاب کرے، اس کا اچھا اسلامی نام رکھے اور اس کو علم دین سکھائے. تو جیسے جسمانی غذا اور جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت، اسی طرح روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے. اور روحانی غذا کیا؟ بچے کو کم سے کم بچپن میں اتنا سکھانا چاہیے کہ منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرے. پہلی بات، منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کی نعمتوں کو آخرت کے لیے استعمال کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی بغاوت، معصیت اور گناہوں سے بچے. اس بچے کو سکھانا پڑے گا اللہ کی محبت، اللہ کے پیغمبر کی محبت، اہل بیت کی محبت. اور جب بچہ بولنے سیکھے تو پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بول اس کو سکھانا چاہیے. ما نحل والد ولد بن ادب حسن، کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑا تحفہ کوئی دے نہیں سکتا. مسلم اور غیر مسلم کی تربیت میں فرق ہے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو دین بھی سکھاتا ہے، اپنی اولاد کو عصری تعلیم بھی دیتا ہے. اور غیر مسلم صرف جسمانی خوراک دیتا ہے، ڈگریاں، عہدے، بڑی بڑی نوکریاں، دنیا کی خوشحالی کے لیے اونچی اونچی تنخواہیں. جب مسلمان کیا دیں گے؟ 7واں مرحلہ یہ ہے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائے گا. یہ ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے، یہ اس کی روحانی غذا ہے. جب تک ماں باپ اپنی اولاد کو روحانی غذا نہیں دیں گے تب تک یہ اولاد کبھی بھی ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے. یہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کا کاٹا تو بنے گا، یہ بڑا بن کر ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی تو کر سکتا ہے. یہ تعلیم کوئی بھی ہو اس کا ایک نہ ایک لازمی اثر ہوتا ہے. آخرت کی تعلیم میں تقوی، خوف خدا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، اللہ کے وعدوں پر یقین کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. حضرت ربیعہ، ان کے باپ کا نام فروخ تھا. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے حضرت فروخ کو ایک سفر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور وہ جہاد کا سفر تھا. پہلے مجاہدین اسلام
निकल पड़ते थे अल्लाह के रास्ते में। जब महाज पूरी हो गई, जिंदगी बाकी रही, अब वापस घर आते थे। मुजाहिद दो हाल से खाली नहीं, या तो वो जामे शहादत नोश फरमाकर हमेशा की जिंदगी नसीब होती है। बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, किताबुल ईमान में, अल जिहाद मिनल ईमान, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। तो इस रिवायत पर कलाम हुआ। नबूवत ऊंचा दर्जा है, शहादत नीचा दर्जा है, तो अफजल के होते हुए मफजूल की तमन्ना आका ने क्यों की? अफजल चीज के होते हुए मफजूल की तमन्ना आका ने क्यों की? नबी तो नबी है, शहीद कितने ही ऊंचे दर्जे को पहुंच जाए, लेकिन नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। लेकिन आका ने 3 मर्तबा फरमाया, शहीद किया जाऊं, जिंदा किया जाऊं, जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, जिंदा किया जाऊं। यहां उलमा ने लिखा है, शहीद मरता नहीं है, दुनिया से मुंतकिल होकर हयात जावेदानी हासिल करता है। और दुनिया में कौन इंसान है जो मरना पसंद करता है? शहीद खाली दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होकर हमेशा की हयात हासिल करता है। और उम्मत को जिहाद की तालीम देना मकसूद था, जज्बाए जिहाद का शौक पैदा करना मकसूद था, और इस परवानित होने वाले नफे उम्मत के सामने पेश करने मकसूद थे। इसलिए आका ने फरमाया। तो यहां अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मैंने नकल किया, दीन सिखाएं। हजरत फर्रुख पेट में हमल है बीवी के, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए राह खुदा में घोड़ा तलवार लेकर निकल गए। घर में 30,000 अशरफियां थी, 30,000 अशरफियां घर में थी। बीवी के हवाले की मदीना की जमीन थी, निकल पड़े। 18 साल के बाद वापस घर आ रहे हैं। 18 साल। ये जितने भी फजाइल अल्लाह के रास्ते के हैं वो जिहाद के हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के नहीं है। ये सारे फजाइल जिहाद फी सबीलिल्लाह के हैं। 18 साल के बाद वापस आए, घोड़े से उतरे और नेज़े से दरवाजा खोला, नेज़े की नोक मारी दरवाजे पर, ऐन दरवाजे पर लाकर घोड़ा ठहराया और नेज़े से दरवाजा ठोका। अंदर से हजरत रबिया तो राय तशरीफ लाए। एक हसीन खूबसूरत जवान 17 साल का, चेहरे पर सर पर ऐमामा बांधा हुआ, दूध जैसा हसीन खूबसूरत चेहरा। या अदुवल्लाह कैफ दखलत हरामी, ए अल्लाह के दुश्मन मेरे हरम में कैसे दाखिल हो? इंसान का घर उसका हरम है, हरम, उसमें बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते। इस्लाम ने कुरान में आयत इस्तेजान उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ए मुसलमानों, तुम्हारे रहने के घरों के अलावा घरों में कोई किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल न हो। इजाजत 3 मर्तबा है। बेल लगा हुआ है, बेल लगा दो। एक मर्तबा लगाकर ठहरो 5 मिनट, फिर दूसरी मर्तबा बेल लगाओ, फिर ठहरो 5 मिनट, फिर तीसरी मर्तबा बेल लगाओ, फिर ठहरो। 15 मिनट के बाद अगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया, वैज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ हुवा अज़का लकुम, या जवाब आया अभी मुलाकात का वक्त नहीं है, वापस लौट जाओ, और इसी में तुम्हारे लिए फायदा है। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। अगर खोले
अंदर आने की इजाजत दे, अब सलाम करो। पहले इजाजत लो फिर सलाम करो, और अगर 3 मर्तबा दस्तक देने के बाद कोई जवाब नहीं आया, जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने की कोशिश मत करो। ये तो आम मुसलमानों को हुक्म है। शागिर्द है उस्ताद के घर गया, मुरीद है शेख के दरवाजे पर गया, उसको बेल लगाने की इजाजत नहीं है, उसको घंटी लगाने की इजाजत नहीं है। अपने उस्ताद के घर जाकर के वो दरवाजा खिटखिटाने की रजा नहीं है। बैठा रहे, जब उस्ताद अपने काम से बाहर निकले उस वक्त ये दरवाजे पर खड़ा रह करके अपना काम निपटा ले। शागिर्द और मुरीद के लिए जायज नहीं है कि शेख या उस्ताद के घर का दरवाजा खिटखिटाए, कि उस्ताद को घर से बाहर निकलने की तकलीफ देना शागिर्द के लिए जायज नहीं। ये इस्लाम का पाकीज़ा ज़ाब्ता है, इस्लाम का पाकीज़ा निजाम है। ठीक इसी तरह बाप के लिए जायज नहीं है कि बेटे को अपने काम के लिए घर से बाहर निकाले। जब बाप बाहर निकले उस वक्त बेटा अपना काम निपटाए। 3 वक्तों में तो किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं। मिन क़ब्ल सलातिल फजर व हिन तदऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा व मिन बाद सलातिल इशा। 3 वक्तों में तो किसी के घर जाना मना है। 3 वक्तों में किसी के घर जाना मना है। एक फजर की नमाज से पहले, एक दोपहर को कैलूला के वक्त, और एक ईशा की नमाज के बाद। क्यों? ये तीनों वक्त पर्दे के काम के हैं। इस्लाम की तालीम तो देखो, और कुरान में पेश करता हूं, 3 वक्तों में किसी के यहां मत जाओ। फजर की नमाज से पहले का वक्त कैलूला, क्यों? उलमाए तफसीर ने लिखा ये इंसान के जायद कपड़े उतारने का वक्त है। समझ गए? मियां बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात के बहाल करने का वक्त है। अल्लाह ने रात को भी तारीख बना करके पर्दा डाल दिया, और पर्दे के काम के लिए बनाया। इन पर्दे के कामों में ईशा के बाद मत जाया करो। और हमारी आदत है कि 10 बजे फोन करेंगे। इजाजत रूबरू वही तरीका फोन का भी है। ओवर टाइम में फोन करना इस्लाम में नाजायज है। हाँ, इज़्तिरारी कैफियत है, तो इज़्तिरारी कैफियत अलग है। किसी की जान जाने का अंदेशा है। इज़्तिरारी कैफियत किसी की बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है। कोई इज़्तिरारी कैफियत है तो ठीक, वरना 3 औकात में घर के लोगों को भी घर में बगैर रजा के दाखिल होना मना है। घर के लोग भी घर में बगैर रजा के दाखिल नहीं हो सकते। बेटा भी बाप के यहां, बाप बेटे के यहां इन 3 वक्तों में दाखिल नहीं हो सकता। ये कुरान है। तालीम बुनियादी चीज है। अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाओ, दीनी तालीम दो इनको। ये माँ बाप का हक है। तालीम के जेवर से आरास्ता करो, और इनको दीन का इल्म सिखाना फर्ज है। अगर खुद आलिम नहीं है, खुद हाफिज नहीं है, खुद कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ। ये तरबियत के 7 मराहिल है। पहला मरहला अच्छी औरत का इंतखाब करो। दूसरा मरहला औरत के साथ खानगी ताल्लुकात कायम करने में ख्याल करो दीन का। तीसरा मरहला पेट के जमाने में खुसूसन लघवियात से, फुसूलियात से, हराम गिज़ाओं से, हराम खानों से, हराम हरकतों से बचाव करो। आजकल मोबाइलों से बच्चे बड़े होते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। उस उम्र में तो औलाद के लिए ये मोबाइल बहुत नुकसानदेह है। चौथे नंबर में इसका अच्छा इस्लामी नाम रखो, इसका अकीका करो, इसके सर के बाल के बराबर चांदी या सोना सदका करो, इसके माथे के अंदर जाफरान भिगो करके इसका जो है लगाओ, और पूरा सर भिगो दो इससे। और फिर यह हक बयान किया, उसका खतना करो। अकीका हो गया, अब उसका खतना करो। और जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको अदब सिखाओ। 9 साल का हो जाए
बिस्तर अलग कर दो, दो सगे भाई को एक गोदड़ी में सोने मत दो, दो सगे भाई को एक चारपाई पर सोने मत दो, दो सगी बहनों को एक साथ चारपाई पर सोने मत दो। और फर्रिक़ू मज़ाजिअहुम, इनके बिछौने अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो। एक गोदड़ी ओढ़कर नहीं सो सकते। इस्लाम की तालीम बड़ी अजीब है। न औरत औरत के साथ, न मर्द के साथ, न सगा भाई भाई के साथ, न सगी बहन बहन के साथ। फर्रिक़ू मज़ाजिअहुम, 9 बरस के हो गए, बिस्तर अलग कर दो। और जब 13 बरस के हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर मारो इनको, नमाज न पढ़ने पर इनको मारो। और 7वां मरहला बयान किया कि अपनी औलाद को इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता करो। वो बाप जिसने अपनी औलाद को दीन का इल्म नहीं सिखाया, मैदान कयामत में अपने गाप का गिरबान पकड़ेगी वो औलाद और कहेगी हमारे बाप ने हमारी जिस्मानी तरबियत की, खाना पीना रहना सहना मकान दौलत दुकान जायदाद तजारत कारोबार फैक्ट्रियां बहुत छोड़ के मरा, लेकिन मेरे बाप ने हमको दीन का इल्म नहीं सिखाया था। ये बाप जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। जिस बाप ने अपनी औलाद की दीन की तरबियत और दीन की कफालत और दीन की फिक्रें और तालीम की फिक्रें नहीं की। मेरे बुजुर्गों, औलाद की तरबियत न करने के नतीजे में आज दुनिया में अजीब कोहराम मचा है। शायद कोई घर ऐसा हो जहां औलाद आंख की ठंडक बनी हो, वरना ये आंख का कांटा बनती है। अपनी पसंद की शादी करेगा लड़की, अपनी पसंद की शादी करेगी, माँ बाप की विलायत की धुजिया उड़ा दी है, अपनी पसंद की शादी। और 15 दिन नहीं हुए न तलाक, महीना नहीं हुए न तलाक, बुरा भट लगाना, माफ करना। 200 घर ऐसे हैं जिनमें बेटियां रिसामने बैठी है और कोई खास वजह भी नहीं है। मोबाइल नहीं वापरने देता है, मोबाइल नहीं देखने देता है। कल असर के बाद 4 बच्चों का बाप घर से निकाल दिया। वो रोता है धारे मार मार कर कि मौलवी साहब 10 दिन से कपड़े नहीं बदले हैं। झगड़ा क्या है? क्या मोबाइल नहीं रखने नहीं देता हूं तो लड़ाई। ये हालात हैं हमारे। क्या तरबियत जरूरी नहीं है? हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं। बनाओ प्रोफेसर, बनाओ इंजीनियर, बनाओ डॉक्टर, बनाओ वकील, लेकिन मुसलमान तो बनाओ। जब आंख बंद हो जाएगी, कब्र के ताए साए तले सो जाएगा, उस दिन कब्र में से बद्दुआ करेगा, नमक हराम था मेरा बाप बागी था कि जिसने मुझे दीन नहीं सिखाया। मेरे बाप की वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर कहलाऊं, मुझे 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीने में मिले, इस वजह से मेरे ईमान और अकीदे की फिक्र नहीं की और आज कब्र में अदाब फरिश्तों के थपेड़े खा रहा हूं। जरूरत है पहले इंसान बनाओ। खाली रात को 12 बजे के बाद शहर में कभी निकलो, होटलों पर कितने जवान मोबाइल में हैं, घर में हसीन खूबसूरत देवी उसका इंतजार करती है। ये बाहर ओटले तोड़ता है। जिंदगी जानिबेन से खामियां और नकाइस इसको उछालना ये इंसानियत और शराफत का तकादा नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं आखिर हक तो है। किसी की बेटी लाए हो, किसी की ममता लूट करके लाए हो, किसी की शफकत और प्यार लेकर के आए हो। देखो, एक तरफ गोरी है, खूबसूरत है, मालदार है, बेहया है, लेकिन एक तरफ काली कलोटी हुस्न है और दीनदार है, तो इसको ले लो उसके मुकाबले के अंदर। वो तेरा दीन का दिवालिया निकालेगी, ये तेरी आखिरत को सुधारेगी। अब हदीस की किताबें पढ़े तो किताबों निकाह में दूसरे नंबर में बाप विलायत का आता है। बाप अगर बेटा फैशन परस्त लड़की ला रहा है, मना करता है, बाप को विलायत है ना कह दे, दादे को विलायत है ना कह दे, नाने को विलायत है मना कर दे, मामे को विलायत है मना कर दे, भाई को विलायत है मना कर दे कि बहन खबरदार, ये हमारे खानदान में जचेगा नहीं। हमें दीन अल्लाह ने दिया है,
ये फैशन हमारे घर में नहीं चलेगी। शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारी चीजें सोचने की है। समाज की पाबंदियां अपनी तरफ, इस्लाम की पाबंदियां पहले नंबर में है। इंसान कितना ही चाहे अपनी तबीयत किसी भी तकाजे से खुश कर ले, लेकिन ये सोचना चाहिए कल जिस धरती के ऊपर रह करके मैं नाज मारता हूं, कल वो धरती अपने अंदर मुझे दबोच लेगी। न बाप काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न रिश्तेदार काम आएंगे। जिस औलाद की परवान चढ़ाने के लिए न हलाल देखा न हराम, न जायज देखा न जायज, कोई परवाह नहीं की। बहन का हक मारा जा रहा है, मार लो। फूफी का हक मारा जा रहा है, मार लो, लेकिन अपना आप बना लो। इंसान थोड़ी देर के लिए इतना सोचे, जिस धरती के ऊपर भी चलता हो वो धरती एक दिन अपने अंदर दबोच लेगी। और उसके बाद की जिंदगी वो जिंदगी है कि जिसकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी और जिसकी राहतें कभी खत्म नहीं होगी। तो औलाद की तरबियत, अब औलाद को थोड़ा सा ठपका दो तो औलाद न करने के काम करने पर मजबूर। अगर माँ बाप कमजोर है तो डंडा लेकर खड़ा, और अगर माँ बाप ताकतवर है तो उनके अफआल करने पर मजबूर, और नतीजतन घर जहन्नम कदा बन जाता है। इस कमीने को ये मालूम नहीं, जिस माँ ने 9 महीने पेट में उठाने की तकलीफ बर्दाश्त की, जिस माँ ने अपनी छातियों से 2 साल मुझे दूध पिलाया, जिस माँ ने 3 साल मेरा गू और पेशाब साफ किया, जिस माँ ने मुझे जवानी तक परवान चढ़ाया और मेरे राहत और आराम की फिक्र की, आज उसी माँ और बाप का बेटा बागी बना। तो जानिब इनसे हुकूक है, हम अपनी औलाद की अच्छे से अच्छी तरबियत करें और इसी के साथ साथ हम अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा दीन सिखाएं। ये सबसे बुनियादी चीज है। मदरसे हो न हो, लेकिन दीन सिखाना फर्ज ऐन है। बाप ही उसका उस्ताद है और बाप उसको दीन सिखाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस हमें खुसूसन इस फितने और फसाद के माहौल में अपनी औलाद को दीन और दीनदारी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी औलाद में बेटियों को घर से बाहर हॉस्टल के अंदर रह करके असरी तालीम दिलवाते हैं। अगर पूरा निजाम लेडीज का है, मर्दों की मुदाखलत नहीं है और उसकी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत होती है, कोई हरज नहीं, जायज है। लेकिन ख्याल रखना चाहिए, एक गैर मुस्लिम खातून है और एक मुसलमान है। मुसलमान अमीन है, काफिर खाइन है। इस्लाम ने तालीम दी, वो औरत अपनी हुस्न के जाहिर करने की जगह है। कल मैंने मिशकात में रिवायत बेटियों को पढ़ाई, मवाज़े हुस्न, चूड़ी पहनने का हाथ, हार पहनने का गला, कांटा पहनने का नाक, वाड़ी पहनने के कान, अपने हुस्न के जाहिर करने की जगहों को भी कोई मुसलमान खातून अपनी हिंदू सहेली को बता नहीं सकती है। वो हिंदू सहेली खाइन है, अपने शोहर को या अपने मर्द मुताल्लिक को, भाई को, इस मुसलमान अपनी सहेली का हुस्न और खूबसूरती बताएगा और उसके दिल के अंदर इससे ज़िना की रग़बत पैदा होगी। ये भी ज़िना की दावत है। इस्लाम ने कहां तक बचाया, बल्कि मुसलमान खातून को कहा, खबरदार कोई मर्द किसी औरत की ड्यूटी, मर्द की ड्यूटी से लेकर गोठन के नीचे तक के हिस्से को, और कोई औरत सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक को, बरहीना जिस्म न मुसलमान औरत का देख सकती है, न मुसलमान मर्द का देख सकता है। इस्लाम ने किस कदर गुनाहों के लिए रोकथाम लगाई। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमावे। ये बेहयाई का जमाना है, ये फवाहिश के शुरू का जमाना है। अपनी औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है, वरना फिर बाप खून के आंसू रोता है, परेशान होता है और औलाद उसके लिए अजीरन बन जाता है, जिसके लिए लंबी चौड़ी दुआएं की,
जिसके लिए मुजाहिदे किए, जिसके लिए रोजे रखे, जिसके लिए वजीफे खींचे, और यही औलाद आंखों का कांटा बन जाती है। वो तरबियत के मामले में थोड़ी सी होशियारी की जरूरत है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पंजाब में हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी थे, जो हिंदुस्तान के अकाबीर मशाइख और आलमा में से थे। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब इंदौरी, जो तरकेसर के शेखुल हदीस थे, इल्मी तबके में सबसे माए नाज शख्सियत शुमार होती थी, अकाबिर का नमूना थे सलफ का। इस तरह दारुल कंठारिया के उस्ताद मौलाना इब्राहिम चौकसी अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। अल्लाह सबकी करवट करवट मगफिरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक भाई कोमे में है, बोलेरे के एक्सीडेंट के अंदर आकर के जवान है, रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी के लिए गए थे, एक हादसे का शिकार हुए, बहुत बीमार हैं, शिफा के लिए दुआ का कहा है। एक मसला भी बयान कर दूं, जब आदमी ड्राइविंग करता है और ड्राइवर एहतियात न बरते और उसकी मस्ती में गाड़ी चलावे या मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग पर करे, ड्राइवर की किसी भी भूल से अगर पैसेंजर का नुकसान हो गया तो ड्राइवर पर 3 गुना है। कत्ले खता की दीयत में 10 लाख, इसकी गलत ड्राइविंग से मरने वाले पर जुर्माना देना पड़ेगा इस्लामी सल्तनत में। इस ड्राइवर पर 60 रोजे रखना वाजिब है और इस ड्राइवर के लिए तौबा इस्तिगफार जरूरी है। जब तक ये 3 गुना की सजा पूरी नहीं करेगा, आखिरत में कत्ले नफ्स का गुनाह होगा। बहुत मामूली चीज नहीं है। बहुत जवान ड्राइविंग पर बैठ करके या तो पान मावा मसड़ना या फोन में बेफाम या फिर स्टीयरिंग पर बैठ करके धनाधनी, देखा है आंखों से बहुत सारे मराहिल कितनों की जिंदगियों को कब्रिस्तान में पहुंचा देता है। क्या ये कोई तरीका है? क्या ये कोई इंसानियत है? क्या ये कोई खेल है? सोचना चाहिए। इस्लाम ने ज़ाब्ता दिया, कत्ले खता में दियत वाजिब है, खून का गुनाह है और खून के गुने में 10 लाख वाजिब होते हैं। अभी के हिसाब से एक जान की कीमत 10 लाख है। 60 रोजे लगातार रखने पड़ते हैं और तौबा इस्तिगफार करनी पड़ती है। पंजाब से एक बहुत बड़ा मरकज बनता है 35 लाख के खर्च से। अतराफ में कोई मरकज नहीं है। 40-40 डेरे इसी मरकज को लागू पड़ते हैं और वहां सिखों ने मसाजिद पर कब्जे किए। ये मौलाना हबीबुर रहमान की जिंदगी का खास अमल, सिखों के कब्जे से मस्जिदें छूना छूना करके मुसलमानों के हवाले की। वो तो अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। आज हजरत साहब वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े खलीफा अपने वफ्द को लेकर यहाँ आए हैं और उसी एरिया के अंदर ये मरकज बनता है जहां मुसलमानों के दीन ईमान की हिफाजत के लिए और इस मस्जिद की तामीर का हो जाना बहुत सख्त जरूरी है। इसलिए नमाज से फरागत के बाद इस मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा लिल्लाह ताउन करते जाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिन शख्सियात के नाम लिए गए उनके लिए और तमाम आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन के लिए 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राफ़िअल मसाकीन व या दल क़ुव्वतिल मतीन। ऐ अल्लाह, क़ुर्ब क़यामत उलमा को उठाने से तो इल्म को उठा लेगा। बड़ी तादाद के अंदर ऐ अल्लाह हामिलीन इल्म उलमा तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अब तक 3000 पूरे आलम में से माए नाज वो उलमा जो इल्म का वक़ार थे, जिन्हें तूने बहुत बुलंद सिफात से माला माल फरमाया था। ऐ अल्लाह, इस 1.5 साल के वक्फे के अंदर तेरी जवार रहमत में चले गए। तेरे नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, जब उलमा समेत लिए जाएंगे तो क़यामत कायम हो जाएगी। उलमा की ये मौतें
یہ قیامت کے قائم ہونے کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اے اللہ، علم کا باقی رہنا، علماء کا باقی رہنا، اس سے دنیا باقی رہے گی، اور جب علماء سمیٹ لیے جائیں گے یعنی ان کی موت ہو جائے گی، اللہ تو قیامت قائم کر دے گا۔ اللہ یہ تیری زمین پر تیرے جانشین ہے، چلے گئے، علم سے امت محروم ہو گئی، ان کے کمالات سے امت محروم ہو گئی، ان کی خدمات سے امت محروم ہو گئی۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، روحوں کو علیگن میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر مصیبت سے، ہر آفت بلا سے بچا لے۔ اے اللہ، افغانستان کے مجاہدین کو، خاندان کے خاندان، گھرانے کے گھرانے، نسل کی نسلیں 20 سال میں جام شہادت نوش فرمانے کے بعد جب آپ نے انہیں اسلامی امارت کے لیے انتخاب کر لیا، 20 سال کے مجاہدے کے بعد، اے اللہ ہر طرح کی مدد کے یہ محتاج ہیں، تو ہی بہتر ضروریات کو جانتا ہے۔ اے اللہ، ہر طرح کی ان کی نصرت مدد فرما، اعانت فرما، امداد فرما۔ تیرے نام پر ملک بنا ہے، تیرے نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی برا دھبا لگے، اس سے حفاظت فرما۔ کلمہ وحدت کی بنیاد پر ملک بنا ہے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے داخلی خارجی فتنے ختم فرما، پورے عالم کے لیے مشعل راہ بنا دے، ہدایت کا نمون بنا دے۔ اے اللہ، یہ بھائی جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوما میں ہے، علاج لے رہا ہے، اے اللہ ان کے باپ حاجی ابراہیم چاندہ نے دعا کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کہا، انہیں صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی، شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ کچھ لوگ 2.5 سال سے کورونا کا ابھی تک ویکسین پر ہے، ابھی تک وہ ویلٹینیٹر پر ہے، یا ابھی تک وہ علاج لے رہے ہیں۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اپنے فضل سے آکسیجن پر ہے، انہیں صحت، شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ کائنات جو ڈرا رہی ہے، اے اللہ تیری ذات کا ڈر ہمارے اندر پیدا فرما۔ مخلوق کیا ڈرائے گی؟ مخلوق سازشیں کر سکتی ہے، لیکن ان سازشوں کے بعد زندگی کے مالک تو آپ کی ذات ہے، اور موت کے مالک بھی آپ کی ذات ہے۔ اللہ، اس قدر گناہ، اس قدر نافرمانیاں، اس قدر حکم عدولیاں منہ دکھانے کے تیرے دربار میں لائق نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو رحمت کی کتنی بڑی بارش سے ہمیں سیراب کر رہا ہے۔ اے اللہ، کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، ہم تو لائق ہی نہیں، تیرے ایک بوند کے بھی ہم قابل نہیں ہیں۔ او ارحم الراحمین، تو کتنا بڑا کرم کر رہا ہے، ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اسے جو پیداوار ہو علم دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس معاملے میں بہت سستی برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، ہمارے مدرسوں سے ہم بے خبر ہیں۔ اے اللہ، ہمیں مدرسوں سے تعلق نصیب فرما، علماء امت کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ جن کی وجہ سے تو قیامت قائم نہیں کرتا ہے، اس طبقے کی امت کوئی فکر نہیں کرتی ہے۔ اے اللہ، پوری امت کو، اے اللہ جن سے کائنات کا نظام بحال ہے، اے اللہ اس میں اپنا سرمایہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے پریشان حال غریب کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی بھی شکلیں پیدا فرما، دا اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولاد کو مطیع فرما بردار بنا۔ اس بارش کی نعمت میں برکت پیدا فرما، اسے زمین کی اچھی سینچائی نصیب فرما، کنووں کی آپ نے سیرابی کر دی، ندی نالے آپ نے بہا دیے، اے اللہ کھیتی خوشگوار کر دی، ساری کائنات کا ہر درخت ہنستا ہے، تیری تسبیح پڑھتا ہے، تیرا ہی فضل ہوا، آپ ہی کا کرم ہوا۔ ان کھیتیوں میں برکت پیدا کر دے، ہمیں بدحالی سے نکال دے، ہمیں خوشحالیاں مقدر فرما دے، ہماری پیداواروں میں برکت دے دے۔ اے اللہ، ہر مکروہ منکر فعل سے ہماری حفاظت فرما۔ سماج میں جو جو برائیاں، خامیاں، کھوٹ ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرما دے، اور اس میں خیر وجود میں آ جائے، ایسی شکلیں پیدا فرما دے۔ حاضرین کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل،
پیارے آقا کے حسنات کے صدقے میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک.